Hello everyone, welcome back to our channel The Commerce Catalyst. Today we are going to continue the valuation of goodwill. So we have already discussed about the valuation of goodwill. There are three methods: one is average profit method, super profit method and capitalization method. In case of average profit methods, there are two simple method and weighted average method. So we discuss about average profit method when adjustments are made. So today we will discuss one more question related to average profit method when adjustments are made. So question is, Paman, Naman and Raman are partners sharing profit and losses equally. They admit they for equal share. So for this purpose, goodwill is to be valued at 4 years purchase of average profit of last 5 years. So profit for the past 5 years were given the 31st March 2020. 31st March 2020 is 30,000. 31st March 2021 is 70,000. And 31st March 2022 is 1 lakh. 31st March 2023 is 1,40,000. And 31st March 2024 loss is given 1,20,000. My dear friend, you have to understand these are 2020, 2021, 2022, 2023 is given the profit, but in 2024 the loss is 1,20,000. In this question adjustment are made. So on 1st April 2023, 5 cycles costing 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expenses. Depreciation on cycle was to be charged at the rate of 25% per annum. So due to an accident in the factory on 15th October 2023, a machine was damaged and 20,000 were incurred on its repair. So in this question, two adjustments made. First one is that 1st April 2020. So very important thing, first you make the working notes. Loss as on 31st March 2024, 1,20,000. And adjustment on 1st April 2025, cycles costing 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expenses. So the profit is, here is loss. So loss how much? 1,20,000. So less, if in case of profit then add. So here is loss as on 31st March 1,20,000. So less cost of cycle wrongly debited to profit and loss account, how much? 20,000. So this is the one adjustment. And another one adjustment is the depreciation. So what is the depreciation? Depreciation at the rate of 25% per annum. So depreciation at the rate of 25% per annum, it means 20,000 into 25%. So 5,000 is a depreciation. So because of loss, and here is a 1 lakh. So 1 lakh. So add the 5,000 is this is the 1,05,000. Now abnormal expenses due to an accident in the factory on 15th October 2023. A machine was damaged. So 20,000 was incurred
repair and machinery. Repair. So this is the abnormal expenses. So in the normal case, this one is the add, but because of loss, so that's when we have less abnormal expenses, repairs, is 20,000. So the net is the loss is the how much? 85,000. So now valuation of goodwill. So what is the goodwill? How calculate the goodwill? So goodwill equal to formula, goodwill is equal to average profit into number of years purchase. Goodwill equal to average profit into number of years purchase. So these 4 years, 1, 2, 3, 4, and 20, 21, 22, 23 is a profit these 4 years, and 2024 is loss 1,20,000. So net loss how much? 85,000. So now goodwill equal to average profit. So first we calculate average profit. So average profit how? Average profit equal to total profit TP into number of total profit divided by number of years. Total profit. So total profit equal to 30,000. First one is that average profit equal to total profit TP divided by number of years. So total profit how much? 30,000 plus 70,000 plus 1 lakh plus 1,40,000 or minus how much? 85,000. Because these are the actual loss divided by 5. So 1 lakh, 2 lakh, 3,40,000 minus 85,000. So 3,40,000 minus 85,000. Means 2,55,000. 2,55,000 divided by 5. 5 5 is 25, yani 51,000. And average profit equal to 51,000. So what is the formula? Goodwill equal to average profit into number of years purchase. Goodwill equal to average profit into number of years purchase. So average profit 51,000 and number of years purchase. How many years in the question given? The 4 years. So 4, it means 2,04,000 is the goodwill value. 2,04,000 is the goodwill value. So key point in this question is the working notes. And working notes, why cost of cycle wrongly debited to profit loss account is less? Because the loss as on 31st March is 1,20,000. If given in 2024 is the profit, then reverse will be just like these are the add, this one is the less, these are the add, this one the add. So you have to understand, if any abnormal loss, so it should be add, and if any abnormal income, so it should be deduct. But in this case, because of loss on 31st March, so we have passed the reverse into. So you have to understand, in case of valuation of goodwill, in case of average profit method, and when adjustment are made, so you first
make the working notes and you make the proper adjustment. And adjustments concept is very simple. अगर कोई भी इनकम जो एबनॉर्मल होगा और एबनॉर्मल इनकम किसी भी रूप में आएगा उसे हम डिडक्ट करेंगे अगर प्रॉफिट दिया हुआ है इन नॉर्मल केस में, और अगर एक्सपेंसेस होंगे और लॉसेस होंगे तो उसे हम ऐड करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि 31 मार्च 2024 को फर्म जो है वो लॉस दिखा रहा है 1,20,000 को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस। सो फर्स्ट you make the concept of the our accounting concept कि अगर कोई भी एबनॉर्मल इनकम होता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम डिडक्ट करते हैं, और अगर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है तो उसे हम ऐड करते हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट होता तो। लेकिन अगर ये लॉस है तो ये जस्ट रिवर्स होगा और हम फर्स्ट क्या करेंगे, ये 85,000, तो ये 85,000 क्या हो गया, ये 85,000 हमारा जो है ये एक्चुअल लॉस हुआ इस ईयर में 2024 में, जो दिखा रहा था वो 1,20,000। अब ये 85,000 हम प्रॉपर लेके आगे कि हमारा इस ईयर में जो अभी तक बुक्स में दिखा रहा था, इन प्रॉब्लम में दिखा रहा था कि 1,20,000 लॉस है, ये घट करके 85,000 लॉस हो गया। अब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल गुडविल का वैल्यू निकलेगा। सो नाउ द गुडविल फॉर्मूला इज द गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, एंड नंबर ऑफ इयर्स क्या है, 4 है। इन प्रीवियस क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कि क्यों जरूरी है गुडविल का वैल्यूएशन करना। तो मैंने आई हैव ऑलरेडी गिवन द वन एग्जांपल कि हम एक बिजनेस करते हैं, जैसे हमने इसमें बताया था कि ए, बी और सी 3 पार्टनर मिलकर के और एक बिजनेस करता है, जैसे एक आम का बागान करता है। और इसी क्वेश्चन को अगर हम ले, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पवन है, नवन है और एक रमन है, ये तीनों मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट करता है, एक आम का बागान खरीदता है और उसमें पेड़ लगाता है। और कुछ दिन के बाद देव जो है वो आता है और इक्वल शेयर लेने के लिए वो रेडी रहता है। दे एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर। So for this purpose, goodwill is to be valued at 4 years purchase of last. तो अगर हमको 5 साल का यानी 1 2 3 4 5 इयर्स का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आज जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा कि पवन, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक पवन है, एक नमन है और एक रमन है, ये तीनों मिलकर के एक बागान लेते हैं और उसमें पेड़ लगाते हैं, और जब उस पेड़ में फल होने लगता है तो एक पार्टनर एडमिट होता है। वो एडमिट जो होता है जिसका नाम है देव। तो ये तीनों तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पवन, नमन, रमन, जिन्होंने इतना मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, और आज इसमें जो है आम का बागान में ये आम का फल आने लगा, ये मैंगो जो है आज होने लगा। उस समय में देव आते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी पार्टनर रखो और इक्वल पार्टनर में रखो। तो जब इक्वल पार्टनर के लिए हमें इनको, देव को इंटर्ड करते हैं, इसमें लेते हैं इनको, तो इनको क्या है, उस डेट को जो फर्म का गुडविल है, जो फर्म का वैल्यूएशन है वो करना है। तो उस करने के लिए जो एक्चुअल मेथड है, जैसे यहाँ पे मेथड दे दिया इसमें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना है, वैसे यहाँ पे आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। सो इन केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, 2 है, एक है सिंपल एवरेज और एक है वेटेड। ये हम सिंपल एवरेज में व्हेन एडजस्टमेंट आर मेड, जब एडजस्टमेंट मेड कर रहा है। तो अब ये पवन, नमन, रमन जब यहाँ पे है तो फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना है, तो उसके लिए फर्स्ट तुम्हें एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा। जब एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकलेगा तभी हम एक्चुअल वैल्यू जो है वो गुडविल का निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू हमने 85,000 निकाला, तो यानी इन प्लेस ऑफ अगर हम ऐसे निकालते हैं इनको कि एवरेज प्रॉफिट, तब तो ये क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000 है, यहाँ पे माइनस 1,20,000 होता है, बट यहाँ पे 85,000 हुआ। व्हाई? बिकॉज रीजन बिहाइंड इट कि यहाँ पे जो ये रॉन्गली जो एडजस्टमेंट हुआ था, जो रॉन्गली जो एडजस्टमेंट है उसको पहले हमें सही करना है। तो उस सही करने का जो कॉन्सेप्ट है वो है 2।
कि एक पहला कि कोई भी इनकम होगा जो एबनॉर्मल इनकम होगा, वो एबनॉर्मल इनकम क्या होगा, वो प्रॉफिट से डिडक्ट हो जाएगा और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस जो होगा वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है और यही कॉन्सेप्ट जो है वो कोई भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहीं भी निकालेंगे, कोई भी मेथड से होगा, लेकिन ये आएगा। अब वेटेड होगा उसको मैं लेटर ऑन विल डिस्कस, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट जो सिंपल मेथड से होता है उसमें क्या, जब हम एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हमें ये चीज समझना होगा। और फोकस पॉइंट, की पॉइंट क्या है कि यहाँ फर्स्ट देखना है कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। अगर यही प्रॉफिट होता, इफ गिवन प्रॉफिट, अगर इन केस ऑफ यहाँ पे जो लॉस दिया है अगर यहाँ प्रॉफिट देता तो फिर ये ऐड हो जाता, ये लेस हो जाता, फिर ये ऐड हो जाता। सो दैट्स व्हाई पहले ये वर्किंग नोट को जानना जरूरी है। अगर आप ये वर्किंग नोट कर लेते हैं उसके बाद ये क्या है, एकदम जीरो है, इसके बाद कोई इसमें है ही नहीं कुछ, सीधे एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि गुडविल कैसे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट एवरीबॉडी नोज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज गिवन ऑलवेज इन द क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ इयर्स दिया रहता है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले एक वर्किंग नोट बना लेना है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे ना अकाउंटिंग में, सबसे पहले ये रखो कि एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। कोई भी चैप्टर बनाओ पहले एडजस्टमेंट क्या है, जो हार्ड चीज है उसको सही कर लो यार। पहले ये हार्ड मतलब जो आपका एडजस्टमेंट है यहीं पे दिक्कत होगी। तो जो प्रॉब्लम क्रिटिकल चीज है, जो डिफिकल्टीज वाली चीज है, जो आपको प्रॉब्लम डालेगा, कहने के लिए तो कुछ नहीं है। यहाँ पे 85,000 आपने डाला, यहाँ पे 1,20,000 डाल देते, क्या होता, ये पूरा का पूरा गलत हो जाता। तो हमें क्या है, अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अकाउंट्स इज द लुकिंग ग्लास ऑफ द बिजनेस एक्चुअली। दर्पण झूठ ना बोलिए। अकाउंट्स जो है वो कभी, जैसे आप अगर घर से बाहर निकलते हो तो आईना के सामने खड़े होते हो और देखते हो कि हम बाहर जाने लायक है कि नहीं। ये कोई भी बिजनेस जो है ना, वो उसको अकाउंट्स ये बताता है कि आप आगे जाने लायक हो या नहीं हो। अगर अकाउंट्स ना हो ना तो बिजनेस, क्योंकि अकाउंट्स इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, अकाउंट्स इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। सो आप अकाउंट्स को बस यही मत समझो कि चलो हाँ ठीक है अकाउंट्स हमने बना लिया, ये चीज कर लिया। अकाउंट्स जो है ना वो एक बैकबोन है किसी भी बिजनेस को। तो अगर बीइंग कल आप एक बड़े अकाउंटेंट बनते हैं या किसी भी फर्म्स को संभालते हैं और देखते हैं, तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि ये जो है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है कि इस कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए हमें इसको हर समय जो है क्या करना है, चेक करते रहना होगा। इस अकाउंट को प्रॉपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, तभी आप जो है इस बिजनेस को जो है प्रॉपर चला सकते हैं। अभी हम उसका पार्ट बता रहे हैं, ये है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। आपने ये देखा कि एक क्वेश्चन था जिसमें ये था कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें एक क्वेश्चन बनाना था जो वेरी सिंपल था और उसको हमने बनाया। तो होप यू हैव टू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। वंस अगेन आई विल रिपीट, valuation of goodwill, there are three methods: average profit method, super profit methods and capitalization method. Average profit में simple average profit method, so in case of simple average profit when adjustment are made. So question is the Pawan, Naman and Raman are partners sharing profit and losses equally. ये तीनों जो है equally लेता है और देव जो है ज्वाइन करते हैं। जब देव ज्वाइन करते हैं तो इस चीज के लिए ही हमें गुडविल निकालना पड़ता है। और कितने इयर्स का, 4 इयर्स के लिए। तो 4 इयर्स के लिए हमें जो है 4 इयर्स ऑफ परचेज के लिए हमें जो है ये गुडविल निकालना पड़ता है। और ये एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वर्किंग नोट बनाते हैं और वर्किंग नोट में हम ये देखते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट में क्या था कि ऑन 1 अप्रैल 2023 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000 were purchased and were wrongly debited to profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस में ये हमने गलती से डेबिट कर दिए थे, तो इसको हमें क्या करना है, पहले यहाँ से हमको माइनस करके ये 1 लाख लाए। इसके बाद क्या था, इस पे 25% जो है डेप्रिसिएशन था, तो 20,000 इंटू 25% ये 5,000 आया, तो इसको हमने ऐड कर दिया। जो आपको कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी मैंने बताया, आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दोज कॉन्सेप्ट। और उसके बाद ये 20,000 जो है ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है। जनरली ये क्या होता है, जनरली ये ऐड होता है, बट इन केस ऑफ लॉस है ये 31 मार्च को, तो इसे हमें क्या करना पड़ा, लेस करना पड़ा। तो इस 20,000 को, तो अब जो है एक्चुअल ये 85,000 जो है हमारा लॉस निकला, जबकि पहले जो था 1,20,000 दिखा रहा था।
नाउ एवरेज प्रॉफिट निकाल दिए, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। अब टोटल कितने 5 इयर्स का है, 1 2 3 4 5 और 5 से इसको डिवाइड किए हमें 51,000 जो है एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब ये 4 इयर्स था तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, सो 51,000 इनटू 4 इक्वल टू 2,04,000। सो होप you have to understood. Thank you very much.